Hello everyone, welcome to our channel. This channel is basically for all the students who are appearing in their studies further educations through open universities, and these kind of students mostly find it very difficult to study, to get the classes, and there are very less materials available online. So the main purpose is to create this channel is to benefit all the students who are appearing from open university. So this will definitely help them to for their studies, and they can also pass and get their required certificates for their for the designation growths in their respective companies. So this particular lesson which we are going to do is for the preparatory exam for Yashwantrao University distance education. So this exam will decide that are you capable to get an entry in the university for the further studies. So this exam you all must take very seriously. So if you have already appeared for the exams, or those students who have already filled the form application form, they all must have received their study materials from their respective colleges. So the study materials, basically you must have received one book, but that one book have total three books in it. So we are going to study and make notes for all that three books. So let's begin with our very first book, and every book has multiple units in it. So we are going to look into a very great detail of that books and all the units. So we are going to begin with the book one, the first unit. So before getting into the unit and what is in that unit, I would like to tell you a very short story. Now I'm going to use dual languages, maybe the more than two languages also, English, Hindi, Marathi. So the students who are not that much comfortable with the English, even that students can get the benefit out of it. And anyone, any students, if you face any difficulties, any doubts, you can leave your comment. Okay. So the story begins like this. I'm going to use different styles of learning where there is a limitation because this is a virtual class, so there will be a limitation in teaching, but still I'm going to use the maximum learning styles, the methods which is possibly very least people must have used in the online sessions. Okay, so I'm going to tell you a very short story. Let's begin with the story. There was a very old person. His name was Shantaram. वो वो एक विलेज में रहता था, एंड इन इंडिया ओनली. ओके, बाय द नेम तो आप लोग को पता चल रहा है इंडियन पर्सन. सो ये पर्सन, उसका खुद का बिजनेस था अम्ब्रेला सेल करने का. नाउ यू ऑल मस्ट बी नोइंग अम्ब्रेलाज का सीजन तो फुल ईयर के लिए नहीं रहता है. देयर आर स्पेसिफिक फ्यू मंथ्स के लिए रहता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन. Now, but Shantaram was getting very older. He had throughout his life उसने काफ़ी स्ट्रगल किया. वो अपने उसके पास एक छोटी सी ये रिक्शा टाइप टेम्पो थी. उसके अंदर वो अपने अम्ब्रेला ले कैरी करके डिफरेंट विलेजेस में विजिट करके ही यूज्ड टू सेल इट. सो काफ़ी स्ट्रगल वाला लाइफ उसने अपने पूरे एंटायर लाइफ में उसने काफ़ी स्ट्रगल किया है. एंड विथ ऑल दैट स्ट्रगल and all his efforts, he has saved lots of money,
and by that money he has made a very beautiful house, a very rich house, very expensive house in his village. Now Shantaram was alone. His wife was already passed away many years ago, but he had a son. Son name was Shubham. Now Shantaram was very worried about his son. वो शांत शुभम इतना नॉटी बच्चा था. He was not responsible, very irresponsible. He used to spend the money the way he would like. The uh, college dropout, he was college dropout. He used to be always with his friends outside. No, not a single responsibility he was ready to take, and he was not taking his life seriously. So Shantaram was very worried, but Shantaram knew that Shubham has a certain skills in him by which he can definitely grow, but I need to help him to grow, to reach that skills and achieve that skills. So Shantaram decides that I will teach him a lesson. मेरे सन को मैं एक सबक सिखाऊंगा. So he calls him. तो शुभम जाता है अपने पिताजी के पास. नाउ शांताराम को मालूम है कि शुभम एक ऐसा लड़का है, काफी ग्रीडी लड़का है, पैसे के लिए कुछ भी करेगा. सो शांताराम बोलता है शुभम को, बेटा नाउ मेरा तो एज हो गया. नाउ आई हैव दिस वेरी रिच हाउस, वेरी एक्सपेंसिव हाउस. सो दिस आई एम थिंकिंग कि मैं क्या करूं. मैं ऑर्फनेज को देने का सोच रहा हूं, या तो आई विल गिव इट टू यू, बट यू नीड टू प्रूव मी if you want this house. So as I told you, Shubham was very greedy. So उसने डैड को बोला, नहीं डैड, हाउ कैन यू गिव दिस टू ऑर्फनेज, गिव इट टू मी, एंड मैं इस चीज के लिए कुछ भी करूंगा, यू टेल मी व्हाट आई हैव टू डू. सो शांताराम उसको एक टास्क देते हैं. मतलब देखो, आई विल नॉट गिव यू एनी वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू हैव टू डू सडन थिंग्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. सो मैं एक छोटा सा तेरे को एक टास्क देता हूँ, दैट यू हैव टू डू फ्रॉम टुमारो. तो शुभम गेट्स वेरी एक्साइटेड, डैड दो मेरे को टास्क, क्या करने है बताओ मेरे को. सो डैड इसको बोलता है, टुमारो मॉर्निंग वंस यू गेट अप, वेक अप, get fresh, take a bath, and sharp 9:30 you will leave our house, and एक 4 lanes छोड़ के there is a main road, main highway. वहाँ पे एक माइलस्टोन है. माइलस्टोन मतलब आप सबको मालूम रहेगा, जहाँ पे जिस पे लिखा रहता है कि सूरत इतना डिस्टेंस पे है, मुंबई इतना डिस्टेंस है, दैट इज माइलस्टोन. तो वहाँ पे माइलस्टोन रहेगा. वो माइलस्टोन पे के इधर जाके तुम खड़ा रहना है. यू नीड टू सिट देयर द होल डे, एंड रात को 10 बजे आना है रिटर्न. ओके, एंड यू हैव टू टेल मी ऑल द थिंग्स विच यू हैव ऑब्जर्व और यू हैव नोटिस्ड. सो शुभम नेक्स्ट डे एकदम फ्रेश भी सो के, शैम्पू वगैरह करके, पाउडर वगैरह लगा के एकदम तैयार होके टिप टॉप ही गोस, एंड ही फाइंड्स द दैट माइलस्टोन. उसको वो माइलस्टोन दिख जाता है, ये है वो माइलस्टोन. सो वो माइलस्टोन के अंदर जाके बैठता है, टाइम स्पेंड करता है. टाइम नहीं जा रहा है, टाइम नहीं जा रहा है, टाइम नहीं जा रहा है, द होल डे ही. बट वो टास्क कंप्लीट कर देता है रात, बट रात को 10 बजे आज रिटर्न आता है. शांताराम आस्क शुभम, बेटा तुमने क्या नोटिस किया, इतना सुबह से तुम गए हो, क्या कुछ नोटिस किया आपने, हैव यू नोटिस एनीथिंग. सो शांताराम बोलता है, शुभम बोलता है कि नो, आई हैव नॉट नोटिस्ड एनीथिंग. तो शांताराम उसको बोलता है, फाइन नो प्रॉब्लम, यू हैव नॉट नोटिस्ड, ओके फाइन, सो टुमारो ऑल्सो यू हैव टू डू द सेम थिंग. सो शुभम बोलता है, ठीक है मैं जाता हूँ. तो कल नेक्स्ट डे भी, सेकेंड डे 2 को भी हो जाता है, एंड सेकेंड डे को भी ही कम्स बैक, एंड शांताराम अगेन आस्किंग व्हाट यू नोटिस्ड. Again this time he tells, nothing, I have not noticed, there is nothing, it's a
प्लेन लैंड है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्या हम नोटिस करूँ वहाँ पे। सो शांताराम उसका काफ़ी इंसल्ट करता है, बोलता है यू आर सच अ ग्रोन अप किड एंड यू if at so many hours you are spending at that milestone and you have not noticed anything. You need to concentrate what you are doing, the task on which you need to totally concentrate on it. You need to focus and make the best utilization of the time which is given to you. I have given you 9:30 to night 10 o'clock, so make a best use of that time and concentrate, focus and use the different skills of yours. तेरे पास हाथ है, पैर है, मुंह है, आंखें, नाक है, use that. Use that. You are not carrying anything, so you use that, and definitely you're going to notice something. Okay, so फिर थर्ड डे वापस शुभम जाता है एंड डज द सेम थिंग। वहाँ पे जाके वो थोड़ा ये अभी क्योंकि रोड है, हाईवे है, काफी ओपन है ना, तो उसको धूप इतना लगता है, ये लगता है इतना, 2 दिन से वो जा रहा था, तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस, उसको इतना धूप लग रहा था कि उसको रात को आते समय पूरा स्वेट हो जाता था, पसीने पसीने ये हो जाता था। तो वो थर्ड डे को प्लानिंग से गया कि कैरीड एन अम्ब्रेला, मस्त अम्ब्रेला कैरी किया अपना, और सन ग्लासेस वगैरह कैरी किया, पानी के बॉटल्स वगैरह कैरी किया, एंड जाके बैठा आराम से। नाउ ही स्टार्टेड नोटिसिंग। तो उसने जैसे किया, उसने कहा अरे मैं माइलस्टोन पे मैं इतना दिन से बैठ रहा हूँ, इस पे कुछ तो लिखा हुआ है। तो वहाँ पे माइलस्टोन पे लिखा था रिवर पिकनिक स्पॉट 2 किलोमीटर्स अहेड। सो उसने वो एक चीज़ नोटिस किया, एक चीज़। फिर बाद में ही तो बैठता है और थोड़ी देर बैठता है, देन ही नोटिसेस बहुत हॉर्न्स की आवाज़ आ रही, हॉर्न 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 हॉन्किंग की आवाज़ आ रही। सो वो एक नोटिस किया। फिर बाद में ही नोटिस कि यहाँ पे कुछ पानी फ्लो हो रहा है, उसका भी आवाज़ आ रहा है, रिवर वाटर जो फ्लो हो रहा है उसका आवाज़ आ रहा है। देन ही ऑल्सो नोटिसेस कि यहाँ से कंटिन्यूस सिर्फ एक ही टाइप के व्हीकल्स जा रहे हैं, एक रेड कलर की जीप्स जा रही है, सब रेड कलर की जीप्स जा रही है। सो ही नोटिसेस दैट ऑल्सो। फिर वो वेरी एक्साइटेडली वापस रात हो जाती है, आ जाता है घर पे। शांताराम आस्क्स है, बेटा क्या नोटिस किया तुमने? सो वो बोलता है डैड मैंने माइलस्टोन पे लिखा था कुछ तो, कुछ पिकनिक ऐसा लिखा था सर, बट ये अनेबल टू रिमेम्बर दैट। अरे यार मेरे को याद ही नहीं है, शिट आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर क्या लिखा था। तो ही फॉरगेट्स। और फिर बोलता है चलो ओके नो प्रॉब्लम, और क्या नोटिस किया? बोलता है कि हाँ वहाँ पे एक जीप्स जीप्स जा रही थी, और मैं कुछ तो पानी का आवाज़ आ रहा था मेरे को काफ़ी, बट जितना चीज़ उसने नोटिस किया था ही वॉज अनेबल टू डिलीवर एंड टेल टू हिज डैड। सो ही गेट्स वेरी अपसेट, बोलता है अरे मैंने बहुत सारे, मेरे को याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। तो डैड उसके बोलते हैं ओके नो प्रॉब्लम, टुमारो यू गो अगेन। सो नेक्स्ट डे वापस से डे 4 को वापस जाता है ये मस्त अपना अम्ब्रेला लेके, सनग्लास लगा के, पानी लगा के, एंड ही कैरीज वन मोर थिंग, एक डायरी और पेन कैरी करता है, एंड ही गोज और स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग, सब पॉइंट्स लिख के रखता है। ये ओके आई हैव, ये माइलस्टोन पे ये लिखा हुआ है, देयर इज अ जीप पासिंग है ना। फिर साउंड आ रहे हैं लोगों की, काफ़ी साउंड आ रही है यहाँ से। देन इसका ये काफ़ी पानी का आवाज़ आ रहा है करके। देन ये नोटिस किया अरे जीप पे कुछ तो लिखा हुआ है, उस पर एक पिक्चर लगा हुआ है और कुछ तो लिखा हुआ है, बट जीप इतना फास्ट जा रही है कि उसको ही इज अनेबल टू रीड। तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन से वो रीड करने की कोशिश करता है, क्या लिखा है क्या लिखा है क्या लिखा है। सो पहले एक जीप जाती है तो वो सिर्फ उसमें से यही देख पाता है, एक रिवर का फोटो देखता है। फिर वापस जाती है, वापस से देख रही है, ये उसको लास्ट में एक ये दिखा देता है कि जीप करके लिखा हुआ है। फिर वैसा देख देख के फाइनली एबल टू मेक मेक रीड कि वो जीप पे रिवर पिकनिक जीप स्पेशल ऐसा लिखा रहता है और रिवर का फोटो लगाया हुआ रहता है। सो वो फटाक से डायरी में लिख लेता है एंड ही इज हैप्पी। देन वो वापस नोटिस करता है अरे ये जीप्स
एवरी 45 मिनट्स के इंटरवल में ट्रैवल कर रही है यार. सो ही नोटिस दैट ऑल्सो, और वो भी लिख लेता है. देन दिस टाइम ही कम्स टू हिज डैड, डैड 1 2 3 4 5 6 सी हाउ मेनी थिंग्स आई हैव नोटिस्ड, देखो आप. तो उसका डैड बोलता है ओके फाइन, चलो तूने नोटिस किया, लेकिन कुछ ठीक है वहाँ का, और क्या, और कुछ नोटिस किया है तूने, वो माइलस्टोन कहाँ पे है? बोलता है वो रोड पे है. हाँ, तो बोलते हैं हाँ वो रोड पे है, लेकिन वो रोड मेरे को दिखती, वो जीप कहाँ जाती है मुझे दिखती नहीं है. वो रोड टर्न टर्न है, और उसके आगे माउंटेन है, उसके पहले माउंटेन है, तो माउंटेन के पीछे कुछ तो है. आई डोंट नो क्या है. वो जीप वैसे टर्न मार के चली जाती है, और माउंटेन के पीछे है, तो आई कैन नॉट सी फ्रॉम दिस साइड ऑन फ्रॉम द माइलस्टोन. तो उसका डैड बोलता है तो यू डोंट हैव एनी क्यूरियोसिटी टू सी क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या है उसके पीछे, माउंटेन के पीछे, या रोड के टर्निंग पे क्या है, 2 किलोमीटर के बाद या 1 किलोमीटर के बाद वो जीप सब कहाँ जा रही है, आवाज कहाँ से आ रहा है. यू डोंट हैव क्यूरियोसिटी, हॉर्न्स का साउंड किधर से आ रहा है, इतने लोगों का आवाज कहाँ से आ रहा है. तो शुभम बोलता है यस यस मेरे को क्यूरियोसिटी है, लेकिन आपने मुझे टास्क दिया था वहाँ पे बैठना, इसलिए मैं नहीं गया. तो बट तुम आप मेरे को बोल रहे हो, तो मैं आई एम वेरी ईगर, मैं तो अभी रात को भी जाके देखना चाहता हूँ. तो उसके डैड बोलते हैं अभी रात को नहीं, ओके यू गो इन टुमारो मॉर्निंग वापस जाओ. तो दिस टाइम ही गोस, मस्त रेडी वगैरह होके जाता है, एंड ही गेट्स टर्न वॉकिंग, जाता है 2 किलोमीटर्स वॉक करते हैं. नहीं नोटिस, माय गॉड, यहाँ पे तो फुल जलसा चालू है, पिकनिक है, ऑल फैमिलीज, डिफरेंट फैमिलीज आर कमिंग, ये कर रही है वो कर रही है, उधर हैपनिंग है, सब एंजॉय कर रहे हैं, पानी में कोई खेल रहा है, ये कर रहा है. एंड आजू बाजू में कुछ भी ट्रीज वीज कुछ नहीं है, सिर्फ रिवर ही रिवर है. सो पीपल मसान नीचे फ्लोर पे, जमीन पे अच्छा चटाई डाल के, दे आर मैट्रेस डाल के बैठे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग गेम्स वगैरह वगैरह वगैरह. सो ये सब देख के उसको मन में, अरे मेरे घर के इतना नज़दीक में इतना अच्छा पिकनिक स्पॉट है, आई हैव नॉट नोटिस येट. तो फिर वो ये रिटर्न आता है घर पे, डैड को बोलता है डैड वहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, ऐसा ऐसा है, पूरा डिस्क्राइब करता है. तो डैड बोलता है वो वहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, ग्रेट, और क्या फिर. सो बोलता है, उसके डैड बोलते हैं यू टेक सम टाइम, तू थोड़ा सोच क्या कर सकते हैं, अभी तूने कुछ नया सीखा है, ये 6 5 दिन में कुछ नया सीखा है, सोच क्या कुछ कैन इट हेल्प यू समवेयर. सो बोलता है ठीक है मैं आई विल थिंक. So, hello everyone. So, I hope that you all must have listened to the story very carefully. If you have done so, so very congratulations. You all have finished the first unit of the first book. Yeah, it's true. So, if you have not listened, so I will request everyone to go back and listen to the story again, once again, to understand this unit. So after listening to the story, you just need to remember that story, that's it. No need to remember any notes, no need to read the book, big pages of big books, nothing. So let's begin our units, what is actually written in the book, and how we can relate it to the story and remember it very easily. So the unit 1 for the book is learning skills and nature and needs. Learning skills के nature and needs. So this is the name of the unit. Now when we say learning, each and every word has it has its specific meaning. Now when we say learning, what is learning, what do you understand by learning? Learning is nothing, is not something which you gain in one single day or one single point. Learning is an ongoing process which begins the day when you born, and it ends the day till you die. So learning is a continuous ongoing process. Okay, and to acquire that learning we need certain skills. Okay, and that skills can be developed within us with the time. Some people may have more
command in particular skills, some people might have less command in that particular skills. But we all learn, we all get educated, we all go through that process, and we all have that skills, and we can develop that skills and improve that skills to improve our learning. Okay, so what is learning, you have understood. Basically why we learn and what is the necessary or necessities of necessity of learning. Basically learning, your learning skills will help you to solve the problem. Now problem is always not something, अरे फंस गए यहाँ पे, मुझे ट्रैफिक पुलिस ने फंस पकड़ लिया है, सो वहाँ पे फंस गया हूँ मैं, सो दैट इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैन बी अ पॉजिटिव थिंग ऑल्सो, एनीथिंग, कुछ भी। अरे मुझे आज भिंडी की भाजी बनानी है, कैसे बनानी है, सो इवन दैट इज अ लर्निंग। ओके, सो learning skills helps you to solve the problem. You will have a problem in front of you, and the skills which you have, learning skills, that will help you to solve that problem successfully. Okay, now when the other than human beings, दूसरे जीव भी हम लोग यहाँ पे दिखते हैं जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। वी सी डॉग्स, वी सी कैट्स, वी सी बर्ड्स, एंड सम पीपल हैव डॉग्स एज अ पेट, कैट घर पे पेट रहता है। सो डू यू थिंक दे, उनको भी दे इवन दे आर लर्निंग, उनको हम लोग बोलते हैं क्या लर्निंग स्किल्स लर्निंग है, दे आर एजुकेटेड बोलते हैं कि हम लोग लर्न कर रहे हैं, फिर भी उनको एजुकेटेड बोलते हैं कि हम लोग नहीं बोलते। तो वी हैव हम लोग के घर पे डॉग है, जैसे वो जिनके घर पे डॉग होगा, वी टेज देम, सिट बोलेंगे तो सिट, उठ बोलेंगे तो उठ, कम बोलेंगे तो कम, ही विल कम। That doesn't mean that the dog is educated. It will just follow the instructions. That is the main difference between the human beings and the other animals. We take new knowledge, and we have certain we human beings learn new knowledge. Our behavior with that new knowledge, our behaviors also changes with the time, based on the person, based on the situation, based on the different scenarios going across around us. So behavior changes, the values, we adopt the values from our parents, from our teachers, from our adults, from our colleagues, from our friends. So there are so many people around us from which we adopt the values. So these all skills is very unlike to the animals. Animals, they will just follow the instructions. So we are not the animals, we are human beings. So we need to develop these qualities in us, knowledge, new knowledge, behavior, values, like that. So now the, जैसे शुभम वो स्टोरी में कैसे उसका बिहेवियर गलत था, सो उसका डैडी ने उसका ग्रीडीनेस यूज करके उसको एक बिहेवियर लेसन सिखाया। सो वो सिंसियरली एवरीडे वहां पे गया, दैट्स व्हाई ही लर्न न्यू थिंग वहां पे, एंड हिज डैडी ने उसको इन्फ्लुएंस किया कि उसके वैल्यूज पे, दैट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस, उसको मोटिवेट किया। सो द वैल्यूज ही अडॉप्टेड फ्रॉम हिज फादर। सो दिस इज व्हाट is the learning skills are.
Now in this learning process, different people at different stages of their life, in our life, helps us by giving certain mantras, which by using that mantras we learn and develop our learning skills. There are teachers, parents, friends, many people around us. By them, they give they teaches us these mantras. So there are basically, जैसे शुभम के डैड ने शांताराम ने शुभम को 3 दिन हो गया, he was coming like a fool, कुछ भी नहीं है. Then his father gave him 4 mantras. You need to concentrate करने के लिए बोला उसको. जो टास्क दिया है, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट करना है. देन यू नीड टू फोकस ऑन इट. वहाँ पे गर्मी है, ये है, वो है, सब एक्सक्यूजेस, यू नीड टू लीव दैट एंड यू नीड टू फोकस ऑन द वर्क which is given to you. So concentration, 100% concentration, 100% focus on the given task. Then making the best utilization of the time. आपको मॉर्निंग 9:30 to 10, रात के 10 बजे तक का टाइम दिया, वहाँ पे माइलस्टोन पे बैठने का. सो मेक द बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. फिर दैट टाइम विल गिव यू द वैल्यू विच यू आर गिविंग वैल्यू टू द टाइम. वो टाइम आपको रिवर्स देगा. सो मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम. देन यूज द वेरियस मेथड्स टू रिमेंबर थिंग्स. जैसे आपने नोटिस किया रहेगा कि शुभम जब 4th डे पे जाता है एंड ही नोटिस्ड मैनी थिंग्स. उसने 4-5 थिंग्स नोटिस किए थे, लेकिन घर पे आने के बाद भूल जाता है. उसके बाद हार्डली 1-2 चीज़ ही लिस्ट बता सकता है. सो नेक्स्ट डे जाके ही मेक्स सम चेंजेस एंड डेवलप्स हिज स्किल, इम्प्रोवाइजेशन करता है उसके स्किल्स में. ही कैरीज अ नोटबुक, नोट्स बनाता है and he listens carefully everything, सबके notes भी होना के, and try to remember. So same way, to remember certain things we need to take an efforts to remember that thing. So we need to, there are certain things like small notes we can make to for a small reminders, certain activities we can do to make things simpler to us. So these are the 4 mantras which we learn from our teachers, parents and friends. Concentration, focus, make best use of time, use various methods to remember. Reading and listening के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग methods हैं. Okay, so let's move further.
So when we are telling learning skills, learning skills, learning skills, so now let's see what are that learning skills. And in that entire story we have seen some multiple learning skills which Shubham has adopted. So types of learning skills. First thing, शांताराम शुभम के डैड शुभम को क्या सिखाना चाहते थे, क्यों सिखाना चाहते थे? बिकॉज ही वॉज हिज बिहेवियर वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, सो ही वॉन्टेड हिज सन to be in a proper path, to be focused, and his behavior should be responsible towards his duties. So he tried to give him the values. उसके लाइफ में उसने जितने वैल्यूज जो फॉलो कर रहा था, दैट वैल्यूज ही वांटेड टू गिव टू हिज सन. सो वैल्यूज, the values are important. Okay, so learning skills mein values, this is values plays a very important role in the learning skills. This is one of the learning skills. Then listening skills. Now if you have, उसके डैड ने उसको बुलाया, उसको बताया, then he started following take the efforts to do the task. वो जाके बैठा and he, वो लेन के रोड टर्न होने के बाद वहां पे उसको वेरी शार्पली ही हैज हियर्ड समथिंग, टू थिंग्स उसने सुना, उसने वो स्किल्स यूज किए कि गाड़ियों की हॉर्न्स के आवाज आ रहे हैं, देन काफी लोगों का क्राउड है ऐसा आवाज आ रहा है, द वाटर विच इज फ्लोइंग उसका आवाज आ रहा है. सो ही हैज कॉन्सेंट्रेटेड एंड फोकस, दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू लिसन, यूज हिज लिसनिंग स्किल्स. सो शुभम ने लिसनिंग स्किल्स यूज किया एंड उसको कुछ सर्टेन पॉइंट्स मिले. सो लिसनिंग इज नॉट, वो डे 1 पे गया था, डे 2 पे गया था, तभी भी वो हॉन्किंग हॉर्न्स के साउंड्स थे, रिवर का साउंड्स थे और लोगों के साउंड थे, बट ही वाज जस्ट हियरिंग इट. उसने उसको लिसन नहीं किया. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन. हियर मतलब आपके कान पे बहुत सारी चीजें गिर रही है लेकिन यू आर इग्नोरिंग इट. And when you listen, that means you are actually listening and trying to understand what you are listening, what you are hearing. Okay, so hear and listen are two different things. Okay, then writing skills. उसने उसका मेमोरी, ये नोटिस कि मेरा मेमोरी इतना शार्प नहीं है, मैं इतने सारी चीज़ें मैंने नोटिस किए थे लेकिन डैड को आने के बाद मैं एक ही चीज़ बता पाया. सो ही नोटिस कि यार मेरा मेमोरी स्किल्स थोड़े वीक है एंड इतने सारी चीज़ मैं मल्टीपल थिंग्स मैं रिमाइंड नहीं कर सकता हूँ. सो आई नीड टू यूज सम डिफरेंट टेक्निक्स. सो वो डायरी और पेन कैरी किया एंड ही हैज़ नॉट नोटेड डाउन. सो राइटिंग स्किल्स ही हैज़ यूज्ड. देन रीडिंग स्किल्स. जीप जब पास हो रही थी, हैव यू नोटिस, जीप एकदम स्पीड में पास हो रही थी एंड फर्स्ट टाइम ही वाज अनेबल टू रीड, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, देन धीरे 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 उसको क्लियरिटी आया, थोड़ा 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 रीड किया, देन ही गॉट द क्लियरिटी जीप पे क्या लिखा हुआ है. सो जीप पे लिखा जो रिवर का फोटो था, देन रिवर पिकनिक जीप लिखा था ऐसा, उस पे उसने वो देखा. So in reading also there are different types of reading. Basically there are three types of readings: skim, skip and scan. Now what is skim? I will tell you. Now अभी मैं एक पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, that you have to see. कुरकुरे. नाउ यहाँ पे ये मैं पिक्चर दिखा के आपको डिसअपियर भी कर दूंगा, देन यू विल बी एबल टू टेल मी वहाँ पे क्या था. यू विल टेल कुरकुरे था. In spite of that, you must have not read the proper spelling, Kurkure. Still आप बोल रहे हो कुरकुरे, आपने रीड भी नहीं किया. एक्चुअली दिस इज कॉल्ड स्कीमिंग. जस्ट बाय लुकिंग एट इट आपको मालूम है कि यार ये वर्ड कुरकुरे, ये सब डायग्राम सब देख के ऐसा लग रहा है कुरकुरे. तो दिस पैटर्न ऑफ रीडिंग इज कॉल्ड स्कीमिंग. ओके, एंड स्किपिंग के अंदर क्या होता है, when we read a newspaper,
के अंदर कितने सारे पेजेस रहते हैं और हर पेज में कितने सारे चीजें रहते हैं. So no one reads each and every single word or line in the newspaper. Every single person do skimming. First they skim to the newspaper. सब headlines पढ़ते, फट 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 headlines पढ़ते. Headlines पढ़ने के बाद if they find it interesting, अरे ये interesting लग रहा है, then they get into the other thing, the other type of reading, that is scan. तो वो पर्टिकुलर पैराग्राफ दे विल स्कैन इट एंड रीड प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या एग्जैक्टली मैटर है उसके अंदर. सेम लाइक दैट बुक्स, नॉवेल्स, एनीथिंग्स वी रीड दैट वी स्कैन. एजुकेशनल पर्पज के लिए जो बुक्स रीड करते हैं वी स्कैन इट. ओके. होल्डिंग्स वगैरह जो हम लोग को दिखते हैं बोर्ड रास्ते पे, दैट वी स्किम. वी जस्ट स्किम, वी जस्ट स्किप क्विकली. व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, वी जस्ट स्किप. न्यूज़पेपर जैसा स्किप करके रीड करते हैं हम लोग. वी डोंट रीड इन डिटेल. ओके, लाइक दैट. सो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स. देन मेमोरी स्किल्स. जैसे शुभम ने उसका मेमोरी स्किल्स उसको नोटिस किया, उसने ये नोटिस कि इतना सारा चीज़ मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ, भूल रहा हूँ. सो ही हैज़ अडॉप्टेड द मेमोरी स्किल्स. थोड़ा मेमोरी स्किल्स में याद रखा उसने एंड थोड़ा ही हैज़ रिटेन राइटिंग स्किल्स में यूज़ किया उसने. देन रेफरेंसेस. Now Shubham first today गया and he has noticed, my God, I am feeling very exhausted. धूप इतना है यहाँ पे and there is no shade, nothing. So he has taken his umbrella, sunglasses. And जब वो रोड के एंड पे जाके देखा उसने, तभी same his personal life reference experience he has the used देर. उसने उन पे भी अप्लाई किया कि अरे मुझे, मैं 2 दिन में इतना ये हो गया वहाँ पे बैठ के, गर्म एकदम इतना हो रहा था. सो अम्ब्रेला का तो रिक्वायरमेंट इनको भी होगा. सो ही हैज थिंक इन दैट वे. पर्सनल एंड लाइफ का एक्सपीरियंस उसने रेफरेंस बना के ही हैज यूज्ड दैट. सेम लाइक दैट देयर आर डिफरेंट रेफरेंसेस बुक्स आते हैं. जैसे व्हेन वी गो टू लाइब्रेरीज देयर आर डिफरेंट रेफरेंस बुक्स. ओके. देयर इज आपको डिफरेंट डिक्शनरीज यूज कर सकते हो, एनसाइक्लोपीडियाज वी यूज सब्जेक्ट बुक्स. सो देर आर डिफरेंट रेफरेंस बुक्स विच वी यूज. देन वहाँ पे जाके उसको न्यू नॉलेज मिला कि अरे यहाँ पे फर्स्ट थिंग ही वॉज सिटिंग ऑन द माइलस्टोन एंड ही वॉज नोटिसिंग. फिर उसके डैड ने उसको पूछा तेरे को उधर जाने का मन नहीं किया. So what has actually pulled and made him to go to that corner is the curiosity to get the new knowledge. कि वहाँ पे exactly क्या है, मैं इतना सुन रहा हूँ, आवाज़ आ रहा है क्राउड का, हॉर्न्स का आवाज़ आ रहा है, पानी का आवाज़ आ रहा है, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है रियर पिकनिक स्पॉट, क्या है एग्जैक्टली स्पॉट. सो that has pulled him to, forced him to go to get that knowledge. Then examination techniques. So वहाँ पे umbrellas बेचना उसका एग्जामिनेशन था and which he has done it very successfully. बट इन रियल लाइफ अपने इसमें एग्जामिनेशंस जो स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, देर आर डिफरेंट एग्जाम्स. यूनिट टेस्ट होते हैं, देर आर सेमिस्टर्स, मंथली एग्जाम्स, देर आर एनुअल एग्जाम्स. ओके. Hope that everyone has liked this session which we have conducted in the first unit. So I request everyone to support the channel and subscribe the channel by pressing the subscribe button below, and request you to press the bell icon to get all the future notifications. We are going to finish the entire book, all 3 books. So every time the new unit will come, you will get the notification and you can follow the video and you can learn and you can get your syllabus done within the time. And request you to press the like button, comment your doubts. If anything you want to ask, please comment. I will definitely try and reply to each and every comment. And please share to all your friends and colleagues, those who are appearing for the same exam. Thank you, thank you, thank you very much.